Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets of class first year. Gentlemen, I once again welcome you all in the series of video lectures. And today we are going to talk about the character sketches of the play The Count's Revenge, written by John Henry Walsh. And in our today's lecture, we'll talk about the character of the hero of the play, that is Count of Monte Cristo. The Count of Monte Cristo is the hero of the play, The Count's Revenge. The Count of Monte Cristo is the central figure, the hero of the play, The Count's Revenge. He is the charming, swashbuckling, and ever obliging nobleman, splendidly dressed, the handsome hero, gay, cynical, not very young. Now, in these lines, the physical feature, the personality of the Count of Monte Cristo is described, gentlemen cadets. That how he is a charming, बहुत ही पुरकशिश बंदा है, दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने वाला बंदा है। स्वैश बकलिंग एंड एवर ओबलाइजिंग नोबल मैन, और एक ऐसे किस्म का बंदा है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्प्लेंडिडली ड्रेस्ड, ही इज ऑलवेज वियरिंग एन एक्सीलेंट काइंड ऑफ ड्रेस, बहुत ही शानदार किस्म के कपड़े पहने हुए होते हैं उसको हमेशा। द हैंडसम हीरो, the charming hero, gay, a person who is always full of fun, जो हमेशा अच्छाई के साथ रहता है, मज़े के साथ रहता है, मतलब a person who does not get bored and cynical. Now he is also cynical. It means he is distrustful of the human being because he was deceived by his close friends, so that's why he does not trust the human being more. Not very young, मतलब इतना young भी नहीं है, मतलब ऐसी एज का बंदा है जो दरमियानी एज है, बहुत यंग भी नहीं है, लेकिन ही इज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ द ह्यूमन, लोगों पर जल्दी में यकीन भी नहीं रखता। एज अ यंग सेलर, सेलर मीन्स अ पर्सन हु sails the boat or ship. When he was a sailor, the character sketch of the Count of Monte Cristo is described as a sailor here. जब एक नौजवान sailor था. As a young man, Monte Cristo was known as Edmond Dantes, mayor sailor of Marseilles, a port in south of France. Now, when he was a young, he was known as the Edmond Dantes. Edmond Dantes was the previous name of the Monte Cristo when he was just a sailor of the Marseilles. Marseilles is a port in south of France. फ्रांस के जनूब में एक बंदरगाह है जो जिसका नाम मर्सलीज है, और ये वहाँ एक मामूली सा सेलर था। He loved a beautiful Catalan girl, Mercedes, to whom he was engaged. At that time, he loved a beautiful Catalan girl. Catalan girl, it means a girl which is from Catalonia. Catalonia is a region in Spain. एक कैटलन की खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज, and he was engaged with her at that time. When he was a sailor, he was engaged with Mercedes at that time. उस वक्त उसकी मंगनी की हुई थी मर्सिडीज के साथ, एक जो एक खूबसूरत लड़की थी कैटलिन की। He was to marry her on his return from a voyage which he was to undertake in due course of time. Now, after returning from his voyage, voyage कहते हैं समंदरी सफर को, मतलब वो समंदर की जो जर्नी थी उससे वापस आते ही उसको शादी करनी थी मर्सिडीज के साथ उसी वक्त में। Now, a victim of conspiracy, कैसे वो साजिश का शिकार हो जाता है। बट द मैरिज नेवर टुक प्लेस एज अ यंग फिशरमैन फर्नन मंडेगो, a friend of Edmund and a snake under grass is in other lands. The marriage could not take place. शादी नहीं हो पाई मर्सिडीज की और एडमंड डांटेस की। क्यों नहीं हो पाई?
As a young fisherman, Ferdinand Mendigo, a friend of Edmund, and a snake under grass, his other plans. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि एडमंड डांटेस का जो दोस्त था जिसका नाम था फर्नैंड मंडिगो, जो एक छुपा हुआ दुश्मन था, सीक्रेटली एक दुश्मन था एडमंड डांटेस का, उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। फर्नैंड मंडिगो सीक्रेटली लव्ड मर्सिडीज एंड विश्ड मैरियर। अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि फर्नैंड मंडिगो खुद भी चुप चुप में मर्सिडीज के साथ प्यार करता था, जो उसकी दोस्त की मंगेतर थी एडमंड डांटेस की। वो उसके साथ चुप चुप में प्यार करता था, उसको ये ख्वाहिश थी कि वो उसके साथ शादी करे। सो द क्राफ्टी फर्नैंड hatched the most devilish plot against his own friend Edmond Dantes, where he got him condemned as a spy of exiled Bonaparte by giving false evidence in the court. फिर फर्नन मंडी को क्या करता है, एक बहुत ही खतरनाक किस्म की चाल बिछाता है, एक खतरनाक किस्म का शैतानी मंसूबा जोड़ता है, कहानी मन घड़त कहानी बनाता है अपने दोस्त एडमंड डांटेस के खिलाफ, जिसमें वो यह क्या करता है कि उसको नेपोलियन बोनापार्ट का जो जलावतन हुक्मरान है फ्रांस का, उसका जासूस करार दिलवाता है उसको, गलत और झूठे फेक रिपोर्ट्स सबूत पेश करके कोर्ट में उसको जलावतन जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका जासूस करार दिलवाता है। Then convicted as a spy. Then he was declared as a spy. Who was declared as a spy? The Count of Monte Cristo. फिर एडमंड डांटेस को जासूस करार दिया जाता है। Poor Edmund, a victim of hatred and jealousy, is convicted as a spy and condemned to life imprisonment in an underground dungeon. फिर ये होता है कि उस गरीब मासूम एडमंड को उम्र कैद की सज़ा मिलती है, उसको जासूस करार दिलवाया जाता है, जो शिकार होता है किसका, नफ़रत का और जेलसी का, अपने दोस्त की जेलसी का और उसकी नफ़रत का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जासूस करार दिया जाता है और उसको एक ज़ेर ज़मीन जेल में उम्र कैद की सज़ा मिलती है, उसको वहाँ ज़ेर ज़मीन जेल में भेजा जाता है। The evil Fernand then convinced Mercedes through false news in the press that Edmond Dantes had died in prison. फिर वो बदमाश फर्नैंड मंडे को क्या करता है कि मर्सिडीज को इस चीज़ पर रजामंद करता है, उसको ये यकीन दिलाता है, एक गलत फेक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा के फर्नैंड जो एडमंड डांटेस था वो जेल में मर चुका है। Then he gradually gained her confidence by sympathizing with her. और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या करता है, उसको उसके साथ हमदर्दी का इजहार करके, हमदर्दी अपनी शो करके उसका एतमाद जीतने में कामयाब हो जाता है। इन दिस वे फर्नैंड सक्सीडेड इन मैरिंग मर्सिडीज, और इस तरह से वो मर्सिडीज के साथ शादी करने में कामयाब हो जाता है, विच ही रियली वांटेड। Escapes from prison. Now the Edmond Dantes, the poor Edmond Dantes escapes from prison. वो जेल से फरार हो जाता है एडमंड डांटेस। The unfortunate Edmond Dantes remained in prison for 14 long years. He is an innocent victim of blind justice. Then luck favored him. 6 years before the events of our play, Edmund contrived to escape from prison. फिर होता यह है कि जो बदनसीब एडमंड डांटे से जो 14 साल जेल में रहता है, फिर क्या होता है कि किस्मत और तकदीर उसका साथ देती है, और इस प्ले के स्टार्ट होने से 6 साल पहले वो ये करता है कि वो उस जेल से भागने में, फरार होने में कामयाब हो जाता है। एंड आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम प्रिजन ही रीस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन लाइफ विथ वंडरफुल स्पीड एंड सक्सेस। और जब वो जेल से फरार हो जाता है तो वो फिर अपने आप को बहुत ही आला किस्म का बंदा बना देता है, वो तेज़ी के साथ तरक्की और कामयाबी हासिल करता हुआ जाता है। In 6 years, he acquires wealth, a little and a dazzling place in the French society and settles down in Paris. और फिर 6 सालों में बहुत से ज़्यादा दौलत अपने पास जमा कर लेता है और एक बहुत ही आला किस्म की जगह, इट मीन्स अ ब्रिलियंट प्लेस, डेजलिंग मीन्स ब्रिलियंट प्लेस, फ्रांस की सोसाइटी में, मुआशरे बनाने में वो कामयाब हो जाता है और अपने आप को वो सेटल कर देता है पेरिस में एज काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। नाउ
how he is known as the Count of Monte Cristo. As Count of Monte Cristo, he is greatly respected and admired. After getting the name of Count of Monte Cristo, he is greatly respected and admired. मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको इज्जत मिलती है लोगों से, लोग उसकी हर वक्त हमेशा तारीफ करते रहते हैं उसकी आला शख्सियत की वजह से. But his main aim in life is to take revenge from Fernand Mondego, his deadly enemy, now living in Paris as the Count of Morcerf. लोग तो उसकी सराह करते हैं, तारीफ करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि उसका जो जानी दुश्मन है फर्नांड मंडीगो, उससे इंतकाम लेना, जो अभी काउंट ऑफ मोर्सिफ के नाम से पेरिस में रह रहा होता है. Monte Cristo discovers after searching investigations that his old enemy, the Count of Morcerf, committed yet another gross act of villainy during his service in the French army, that he accepted bribes from the Turks with whom France was at war and surrendered the fortress of Yanina to them in 1823. अब जैसे ही वो जांच करता है काउंट ऑफ मोर्सफ के बारे में, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, फिर उसको ये भी पता चलता है कि फर्नांड मंडीगो ने एक और भी बड़ा जुर्म किया है अपने वतन के साथ, गद्दारी का. वो गद्दारी क्या थी कि उसने अपने दुश्मनों से, तुर्कों से रिश्वत लेकर उनके हवाले जो फोर्ट्रेस ऑफ यनीना है, यनीना का जो किला है, वो उनके हवाले कर दिया है 1823 में. नाउ काउंट्स रिवेंज, वो इंतकाम अपना कैसे लेता है. बाय कीपिंग इन द बैकग्राउंड, मोंटी क्रिस्टो कंटेम्स काउंट ऑफ मोर्सेफ एज अ ट्रेटर टू हिज कंट्री. मोंटी क्रिस्टो काउंट ऑफ मोर्सेफ को वतन का गद्दार करार दिलवाने में कामयाब हो जाता है. ही दस सक्सीड्स इन टेकिंग स्लो एंड प्लेन रिवेंज फ्रॉम हिज आर्च एनिमी, और अपने उस जानी दुश्मन से, जो उसका बड़ा दुश्मन है काउंट ऑफ मोर्सेफ, उससे वो इंतकाम लेने में कामयाब हो जाता है. ही फर्स्ट पब्लिशेस आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स एंड लेटर इन द चैम्बर ऑफ डिप्टीज ही बेक्स हिज चार्जेस बाय गिविंग कन्विंसिंग प्रूफ्स. पहले वो क्या करता है कि न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करवाता है, और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के सामने वो सबूत पेश करवाने में कामयाब हो जाता है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, काउंट ऑफ मोर्सेफ के खिलाफ. It is at this point in the play that Morcerf is at least exposed as a villain that he is. और इस जगह पर प्ले में एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ जाहिर होती है कि जो काउंट ऑफ मुर्सिफ है, ही इज़ नॉट अ रेस्पेक्टेबल पर्सन बट ही इज़ अ विलियन. एक बदमाश और ख़राब किस्म का बंदा है प्ले में. फिर ये सबको पता चल जाता है रीडर्स को. Monte Cristo's challenge. Now, Monte Cristo is challenged by Albert. Albert, the son of the Count of Morcerf, is much offended on learning that his own friend is the cause of his family disgrace and disrepute. Now, Albert, जो काउंट ऑफ मोर्सेफ का बेटा है और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का बहुत ही अच्छा दोस्त है, जब उसको ये पता चलता है कि उसके वालिद काउंट ऑफ मोर्सफ की जो तजलील हुई है या जो डिसरेस्पेक्ट हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए हुई है कि काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने वो सारी चीज़ें की थी, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाए थे और विटनेस भेजा था डिप्टीज ऑफ चैम्बर में उसके वालिद को गद्दार करार दिलवाने में. तो फिर क्या होता है कि अल्बर्ट गेट्स एंग्री विद काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो इन अ फिट ऑफ रेज, और उस गुस्से की वजह से he challenges Monte Cristo to a duel which was to be fought at Bois de Vincennes at 8 a.m. उस गुस्से की वजह से फिर वो अपने दोस्त काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, जो बोइस डी विंसेंस पे होनी है. Now, duel averted. Averted means prevented or stopped. How the duel averted? वो duel खत्म कैसे होती है दोनों के बीच में, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो के बीच में और अल्बर्ट के बीच में. Owing to the intervention of the countess, his beloved of yesteryears, Monte Cristo consents to spare her son's life. Now, countess of मोर्सिफ दखल अंदाजी करती है, वो इंटरफेरेंस करती है और मोंटी क्रिस्टो के पास जाती है, उससे ये इल्तिजा करती है कि वो उसकी बेटे की ज़िंदगी को बख्श दे, जो माजी का उसका बिलव्ड था, महबूब था. Monte Cristo gives his word that Albert would come to no harm and that he would die in his place. और मोंटी क्रिस्टो ये वादा करता है
काउंटेस के साथ कि वो अल्बर्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसकी जगह पर वो खुद मर जाएगा. However, it is the villain who dies and Monte Cristo is thus avenged. लेकिन होता ये है कि आखिर में जो विलियन काउंट ऑफ मोर्सेफ होता है वो मर जाता है और जिससे मोंटी क्रिस्टो अपना इंतकाम ले लेता है. Now the conclusion, gentlemen, is that there is no denying that Monte Cristo is the pivot around whom the whole play revolves. The central figure of the play is the Count of Monte Cristo, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी फिरती रहती है प्ले की. He is indeed a man of integrity and honor. मतलब बहुत ही अजमत वाला, शान और शौकत वाला बंदा है हकीकत में वो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो. ही इज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, ही हैज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, पुरकशिश शख्सियत का मालिक है वो. ही इज़ काइंड एंड नोबल हु इज़ रिवार्डेड इन द एंड फॉर हिज वर्चुअसिटी. मतलब उसकी अच्छाई की वजह से आखिर में जो उसको नवाजा जाता है, उसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा करार दिया जाता है. सो जेंटलमैन, दैट इज़ ऑल अबाउट द character sketch of Count of Monte Cristo. In a next video, we'll talk about the character sketch of the Count of Morcerf. Thank you so much.